ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ انسان کا خود پر کیا جانے والا سب سے بڑا ظلم کسی لاپرواہ سے محبت ہے۔ اچھی صحت کے لیے اچھے دوست کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور دوست بھی ایسا ہو جس سے بات کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ محبت میں احترام کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ محبت کا اصول ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لیں۔ عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس مرد کے دل میں کسی اور عورت کی گنجائش ہو۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں، سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ خواہشوں پر ضبط اچھے نتائج کا حامل ہے، خواہشوں کو آزاد چھوڑ دینا برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، یہ انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں میرے اپنوں کی تھیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ کچھ ادھوری خواہشوں کا سلسلہ ہے زندگی۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں وقت آزمائش ہے۔ زندگی اچھے اور برے حالات کا مجموعہ ہے۔ سجدہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ پتہ ہے دکھ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ نازک مزاج لوگ ہیں، ہم باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ ہر چہرے کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ اپنوں نے ہی سکھایا ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو بیان نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے کچھ باتوں کا، کچھ یادوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ امیر ہے وہ مرد جس کی جیب میں عورت کی وفا ہے۔ کچھ لوگوں سے زندگی اتنے بڑے امتحان لیتی ہے کہ انہیں اپنے تمام خواب بھلانے پڑتے ہیں۔ بہت زور سے ہنسا میں بڑی مدتوں کے بعد، آج پھر کہا کسی نے میرا اعتبار کیجئے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔
एक शख्स बनकर ना जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। इंसान मुश्किलात से लड़ लड़ कर बच तो जाता है, मगर उसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है। ज्यादा अच्छा होना भी गलती होता है। पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पर ही बदलती है, लेकिन एक इंसान ही है जो किसी भी वक्त बदल सकता है। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। इखलाक और ज़र्फ का इम्तिहान ताल्लुक के खत्म होने के बाद शुरू होता है। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी की समझ में नहीं आती। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्द और अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की जद में रहते हैं। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। बात इतनी ही है कि हम ला हासिल को रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। उम्रें गुजर जाती हैं, मगर लफ्जों के घाव नहीं भरते। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। अल्फाज के भी हाथ होते हैं जो थपथपाते या थप्पड़ रसीद करने की ताकत रखते हैं। हर ताल्लुक एहसास से शुरू होता है और खुद गर्जी की फजा में दम तोड़ जाता है। मेरे मिजाज को तन्हाई पसंद आती है, मुझे पसंद है लोगों से फासला रखना। हर वक्त मुयस्सर होने से इंसान की वैल्यू टके की भी नहीं रहती। बेशक अकल का रास्ता दर्द से गुजर कर ही आता है, और सबसे गहरा दर्द हमारे अपने ही देते हैं। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। हम जबरदस्ती किसी को अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। किसी भी ताल्लुक या रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इन 5 चीजों पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। नंबर 1, एतमाद हर रिश्ते की बुनियाद होता है। अगर आप किसी भी सूरत में अपने रिश्तेदार या शरीके हयात का एतमाद तोड़ते हैं या उस पर समझौता करते हैं, तो वो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। एतमाद के बगैर रिश्ता कायम नहीं रह सकता, और एक बार टूट जाने के बाद इसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, किसी भी रिश्ते में ईमानदारी जरूरी है। झूठ या छुपाने की आदत से रिश्ता और इज्जत दोनों का नुकसान होता है। अगर आप अपने एहसासात या हकीकत को छुपाने लगेंगे, तो ना सिर्फ आपका रिश्ता मुतासिर होगा, बल्कि आपकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। नंबर 3, एक दूसरे का एहतराम करना जरूरी है। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत नहीं करते या उनकी राय या जज्बात की
कदर नहीं करते तो रिश्ता बेमायनी हो जाता है। इसका असर आपकी इज्जत पर भी पड़ता है और आपका ताल्लुक भी टूट सकता है। नंबर 4, रिश्ते में वफादारी बहुत अहम होती है। अगर आप अपनी वफादारी पर कंप्रोमाइज करते हैं तो वो रिश्ता मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। किसी की हमायत या वफादारी के बगैर ताल्लुकात में कभी सुकून या एतमाद नहीं रहता। नंबर 5, हर रिश्ते में जाती हदूद का एहतराम जरूरी है। इन हदूद को नजरअंदाज करने से दूरियां बढ़ती हैं, जबकि इनका ख्याल रखने से ताल्लुक मजबूत होता है। इन 5 चीजों पर कभी भी समझौता ना करें, क्योंकि ये आपके रिश्ते और इज्जत के लिए बहुत अहम है। नजरअंदाज होने लगो तो मुंह से कुछ ना कहो, खामोशी से किनारा कर लो। दिखावे की हद तक हर शख्स बेहतरीन है। मोहब्बत का मुकम्मल हो जाना भी किसी नेमत से कम नहीं। मैं तो ये भी समझने से रहा हूं कासिर कि राह तकने के सिवा आंख का मकसद क्या है।